Mr. Srikal students, let's go further about lines parallel to same line. Now students, what do we actually mean by lines parallel to same line? Let's see. So, see students, I'm going to draw one line. Let's say lines parallel to same line. Now let's say this is one line and I'm going to draw two lines which are parallel to this line. Once again, this is one line. Let's say the other two lines are, I draw black in color. This is one line and this is another line, right? Now let's say the name of this line is L, the name of this line is M, and name of this line is P. The lines parallel to same line. Says lines parallel to same line. Now these are the lines L and M which are parallel to line M. These two black lines L and M are parallel to red line MP. What is the meaning of this? This means that line L is parallel to line P. Also, line M is parallel to line P. Means both these lines L and M are parallel to line P. I can write like this, students. I can write it like this, that line L is parallel to P, and I can write line M is also parallel to line P. I can write like this. Or I can name them A, B, C, D, E, F, and then I can write A, B is parallel to E, F, whatever it is. Okay. So this is the meaning of lines parallel to same line, that is red line. Now, now here he says a different thing. Here he says, what? This is a theorem. It's an important theorem, students. He says, just see, lines which are parallel to same line. I was talking about two lines which are parallel to same line. So let's draw this figure only. Let's uh, let's prove this theorem by this figure only. It says lines which are parallel to the same line. These two lines L and M are parallel to red line P. Are parallel to each other. Okay, now he wants to say something else. You know, students, what he's saying? He says L is parallel to P and M is parallel to P. That is agree. This means that L is also parallel to M. This is the understanding from this theorem 6.6. Once again, lines which are parallel to same line. These two lines L and M are parallel to P. ये नहीं बताया कि L और M आपस में भी पैरेलल है कि नहीं, बस ये बताया है L और M P के पैरेलल है. तो थ्योरम बोलती है कि L और M what अपने आप ही पैरेलल होंगी. Students, give me 1 minute. There is one law, thermodynamics. We study in engineering. It is similar to this law. It says if body A is in thermal equilibrium with body B, thermal equilibrium means same temperature, and body C is in thermal equilibrium with bodies B, A and C, both the bodies are in thermal equilibrium with third body B. That means A and C are also in thermal equilibrium with each other. मतलब if temperature of A is same as B,
temperature of C is same as B, then temperature of A and C is also same. So somehow I think this and this law is same. But how we can prove it? So we can prove it by corresponding angles. Students, if you remember, yesterday I told you that the best way to prove that two lines are parallel is to prove their corresponding angles were equal. जे उन्हें the corresponding angles equal हो गए तो lines की होंगी parallel होंगी और उल्टा if lines are parallel their corresponding angles are equal. So what I do, students, I take a transversal. I will take a transversal and I will intersect all the three lines. Right, students? The transversal name is, let's say, Z. So Z transversal intersect all lines P, L, and M. Okay. हाँ स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है. मेरी आवाज ठीक आ रही थी पहले? Yes, sir. Yes, sir. दोबारा स्टार्ट करते हैं बच्चों. आ देखो वो कह रहा हुआ कि ध्यान नाल सुनो. वो कह रहा हुआ कि किसी थ्योरम ਤੁਹਾਡੀ Lines which are parallel to the same line are parallel to each other. शाबाश. ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ? ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ. ਲਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਨਸ ਵਿਚ ਆਰ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਸੇਮ ਲਾਈਨ. ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ. ਲਾਈਨਸ ਲਾਈਨਸ मतलब एक तो ज़्यादा लाइन्स. सो पहले ਅਸੀਂ दो लाइना ले लेंगे. एक ये लाइन और एक ए लाइन. ये दो लाइन लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन. विच लाइन? कोई थर्ड लाइन है. आ देखो आ एक थर्ड लाइन. ठीक है. इट इज पैरेलल टू दिस लाइन. कह गया इट्स पैरेलल टू दिस लाइन. इस लाइन के पैरेलल है दो लाइन्स. इसका मतलब कि आ लाइन मान लो एल है स्टूडेंट्स. आ वाली लाइन एल है और आ लाइन एम और आ लाइन मान लो हैगी है जेड. These two lines which are parallel to same line, same L and M, L and M are parallel to Z. ये मतलब होया are parallel to each other. Are parallel to each other मतलब कि L is also parallel to M. ठीक है. वो कितना सब तो इजी तरीका वा तुसी की कहते हैं ट्रांसवर्सल ले लो. ठीक है. एंड ट्रांसवर्सल दा को आ गया मान लो इन ए बी और सी पॉइंट ते इंटरसेक्ट कर रहा वा. ठीक है. ए ट्रांसवर्सल तीन पॉइंट्स ते इंटरसेक्ट कर रहा. जे तीन पॉइंट्स ते इंटरसेक्ट कर रहा वा स्टूडेंट्स. सो तुसी देखो कि उन्हें क्या कि L इज पैरेलल टू C. सॉरी L इज पैरेलल टू Z. इसका मतलब की होएगा कि मान लो आ एंगल 1 और आ एंगल 2 इन्हां दे करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे. एम आई राइट स्टूडेंट्स? कल असीं पढ़िया सी कि पैरेलल लाइन्स कदों होंदियां ने जदों उन्हां दे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलो बच्चों इक्वल होंदे ने. हमारा मेरी आवाज आ रही है? L is Yes, sir. parallel to Z. कहंदा वा कि लाइंस which are parallel to same line. L भी Z दे parallel है, M भी Z दे parallel है, right? और L क्योंकि Z दे parallel है 1 2 के बराबर होएगा. फिर वो कह रहा so angle 1 is equal to angle 2. ठीक है. फिर वो कह रहा वा कि M is also parallel to Z. So इतो की पता लगेगा
आ जिहड़ा एंगल है 3, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। इन्हों पहली इक्वेशन दे दो, इन्हों दूजी इक्वेशन दे दो। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस चों की तुहानूं मिलिया फ्रॉम 1 एंड 2। देखो बच्चों, तुहानूं फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन चों की मिल रहा, दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब उन्हों की लैफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। लैफ्ट हैंड साइड की है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इसका की मतलब होया कि आ जिहड़े दो एंगल्स आ ये बराबर है। हुण ए दो एंगल्स किहड़ियां लाइन्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स ने, दसो बच्चों। 1 और 3 जिहड़े एंगल्स ने, एंगल 1 एंड एंगल 3, ये किहड़ियां लाइन्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स ने बच्चों? एनीवन? 1 और 3 एंगल्स किहड़ी लाइन्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स है? तू दस। एम ते एल दे, बिल्कुल ठीक है। दे आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ लाइन एल एंड एम। इन्हां दे कदे भी दो लाइनां दे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होण, उहदा की मतलब हुंदा वा? लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। ये बच्चों प्रूव हो गया। ठीक है, समझ आई स्टूडेंट्स? Yes, sir. हमारा लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन। सेम लाइन केड़ी आ? इत्थे Z लाइन्स केड़ियां लईयां ने? L एंड, बोलो केड़ियां दो लाइनां लईयां मैं? M L and M, which are parallel to same line केड़ी लई है? Z, are parallel to each other। are parallel to each other दा की मतलब कि L is parallel to M। L M दे पैरेलल कदों होएगी? ਜਦੋਂ L और M ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਆਪੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ वर्टिकली अपोजिट एंगल, 3 का 3 डैश वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना। हम एक डैश के बराबर है, 3 3 डैश के बराबर है, क्योंकि एक 3 के बराबर है तो एक डैश भी 3 डैश के बराबर होएगा। ठीक है। दूजा पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए प्रूव। इदा ही तुम आ एंगल तो आ एंगल भी प्रूव कर सकते हो सेम आ, तो आ एंगल मान लो आ एंगल 4 आ एंगल है 4 डैश, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। बट तुहानू चारे पेयर प्रूव करने की लोड़ नहीं है, तुम सिर्फ एक पेयर प्रूव कर दो, दो लाइना पैरेलल प्रूव हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, हुण एक होर बड़ी इंटरेस्टिंग करते हैं चीज़। देखो की है, कहना प्रूव दैट के 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, उन्होंने जो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनू की कहते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। की कहते हैं स्टूडेंट्स? एंगल, बोलो एंगल Angle sum property of triangle. एंगल। ठीक है। सो बहुत सिंपल है, जो भी कुछ करना हो मैथ्स में हमेशा की करो, फिगर नू ड्रॉ कर लो। आ ट्रायंगल है मान लो स्टूडेंट्स। ठीक है। आ तुहाडे कोल एक ट्रायंगल है, केड़ी ट्रायंगल है? इहदा तुसी नाम दो। ट्रायंगल का नाम है लेट्स से स्टूडेंट्स ए बी सी। ठीक है जी। असी प्रूव करना वा कि ये जिहड़े 3 एंगल्स ने, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स। केड़े 3 एंगल्स? इंटरनल एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तिन्हां दा सम कितना वा? असी की प्रूव करना वा बच्चों? प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 80 degree. 180 डिग्री 180 डिग्री। सो स्टूडेंट्स एक किदां प्रूव करांगे? BC दे पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। की करो बच्चों? BC दे पैरेलल की करो? एक लाइन ड्रॉ करो। बच्चों समझ गए कि नहीं? ड्रॉ नहीं हो रही मेरे को।
यस, थोड़ा जिहा थल्ले आ जाओगी। हाँ बच्चों, मैं की किया BC दे पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है स्टूडेंट्स, केड़ी लाइन आ? मान लो तुसी इहदा नाम देता सॉरी DE। ठीक है स्टूडेंट्स, इस लाइन का तुसी की नाम दिता? DE। DE. ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन है तुहाडी, ये तुसी कंस्ट्रक्शन करनी है प्रूव करने वेले कि ड्रॉ की लिखोगे DE पैरेलल टू BC। इदा लिखी दा बच्चों, ज़्यादा लिखने की लोड़ नहीं है कि DE नू BC दे पैरेलल ड्रॉ करो, लिखने की लोड़ नहीं, सीधा लिखो ड्रॉ DE पैरेलल टू BC, टू भी लिखने की लोड़ नहीं। ठीक है, DE पैरेलल टू BC। अच्छा, हुण जे दो लाइनां पैरेलल होन स्टूडेंट्स ते ये दो लाइनां पैरेलल ने। ठीक है, पैरेलल ड्रॉ कर लो। हुण दसो स्टूडेंट्स मैनू कि जे दो लाइन्स पैरेलल होन ते कहना इसे कि उन्होंने जेडे इंटरनल एंगल्स ने वो सेम होंगे ने, अल्टरनेट इंटरनल एंगल्स। याद है असी पढ़िया सी 2 लेक्चर पहला स्टूडेंट्स? आ देखो L और M लाइन पैरेलल ने, एक ट्रांसवर्सल R उन्होंने कट रहा वा, तो उन्होंने याद है ना कि 1 इज इक्वल टू 2। इस तरह पता लग गया 1 और 2 केड़े एंगल ने? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Interior angles. हाँ, इंटीरियर एंगल्स ने हैगे ने। इंटीरियर एंगल तो आ भी हैगा बच्चे, आ भी इंटीरियर है, बट ये अल्टरनेट ने। सो इन्हों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहो या सीधा ही अल्टरनेट एंगल कह लो, एक ही गल है। हुण देखो बच्चों ध्यान नाल जे तुसीं देखो तो BC जिहड़ी लाइन आ और DE पैरेलल आ, BC और DE आप BC नूं थोड़ा एक्सटेंड कर दिंदे आ। यस सर। थोड़ा जा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दे वास्ते। की किया आप बच्चों? BC नू थोड़ा जा की किया एक्सटेंड करता। ठीक है बच्चों, हुण आ जिहड़ी लाइन है पूरी लंबी लाइन और ए लाइन पैरेलल आ, तो बच्चों असीं कह सकते हैं कि AC जिहड़ा वा इन्हां नू कट रहा विचों ट्रांसवर्सल। लो AC नू भी आप थोड़ा एक्सटेंड कर दिंदे आ देखो। ठीक है बच्चों, AC यस सर। आप थोड़ा जा एक्सटेंड यस करना। सर। आप कह सकते हैं ना कि DE और आ जी लाइन आ, मान लो इसका नाम असी दिने D डैश E डैश। आप कह सकते हैं ना कि DE और D डैश E डैश नू AC ट्रांसवर्सल कट कर रहा। बोलो बच्चों, Yes, sir. यस सर। कह सकते हैं कि नहीं? सही Yes, है, sir. कह सकते। कह सकते हैं. कह सकते हैं, वेरी गुड। तो इन्हां दे अल्टरनेट एंगल्स केड़े बने बच्चों? अल्टरनेट एंगल केड़े बने? अच्छा, दूजी गल मान लो यह जिहड़ा एंगल है इहदा नाम तुसीं 1 दे दो, इहदा 2 दे दो भी, ते इहदा 3 दे दो, क्योंकि इत्थे हुण ए एंगल इनू इस एंगल नू ए एंगल हुण नहीं कह सकते। ये गल याद रखना बच्चों, जदों मान लो ए एंगल इदां वा तुसीं ए कह सकते हो इस एंगल नू, बट जे एंगल 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स डिवाइड हो जाए, हुण तुसीं इस एंगल या इस एंगल नू ए नहीं कह सकते।